Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine at your places. Bismillahirrahmanirrahim. Today our discussion topic is unit number 5 polynomial exercise 5.1 and 5.2 question number 1, 2, 3 and question number 5. Unit number 5 polynomial. Different terms are used in polynomials. First of all, constant, variable, literal, algebraic expression, polynomials, degree of polynomial, coefficient of a polynomial. Recognize the polynomial 1, 2 and more variables. Variables versus degrees, linear, quadratic, cubic, biquadratic, add, subtract, multiply polynomial, division of polynomial by linear polynomial. First one is constant. A symbol that has fixed numerical value is called constant. ऐसा सिंबल जिसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू हो काउंटिंग नंबर लाइक 1 2 3 that is known as constant. Variable is a symbol that used to represent in a quantity may have a infinite values. ऐसी वैल्यूज़ जिन वैल्यूज़ का हमें पता नहीं होता है like alphabets. Literal, the alphabet that are used to represent the constant or coefficient is called literal. Alphabets को use किया जाता है instead of constant, that is known as literal. Polynomial is an algebraic expression consisting one or more terms of each which of the following exponent of variable is zero or positive integer. अब polynomial क्या होता है? जिस ऐसी algebraic expression होती है जिसका exponent zero हो या positive integers हो, that is known as polynomial. Degree of polynomial means the highest degree या highest exponent, highest power is in a variables, that is known as degree of polynomial. Coefficient of a term, coefficient means वेरिएबल से पहले जो कांस्टेंट टर्म यूज होगी उसको कोफिशिएंट कहा जाता है. इन द टर्म द नंबर इज मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल इज कॉल्ड अ कोफिशिएंट. ऐसा नंबर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कांस्टेंट नंबर हमेशा मल्टीप्लाई होगा वेरिएबल के साथ, दैट इज नोन एज कोफिशिएंट. एक्सरसाइज 5.1 सॉल्यूशन. राइट द कांस्टेंट गिवन इन एक्सप्रेशन. आपने कांस्टेंट्स लिखने हैं गिवन एक्सप्रेशन में. इन 3x + 4 कौन सा कांस्टेंट यूज हुआ है? 3 and 4 आर कांस्टेंट. 2x³ - 1, 2, 3 and 1 as used as a constant. 5y + 2x, 5 and 2 used as a constant. 7y² - 8, constants are 7, 2 and 8. Question number 2 is write the variable taken in the equations. 2x - 1 and x is a variable. In equation 2, x plus y is equal to 3. X and y are used as a variable. Part 3, x² minus x minus 1 is equal to 0. X is used as a variable. In equation 4, 7y² minus 2y plus 3 is equal to 0. Y is used as a variable. राइट द लिटरल यूज्ड इन द इक्वेशंस. अब लिटरल्स बताने हैं आपने. डिफरेंट इक्वेशंस आपके पास गिवन है. फर्स्ट इक्वेशन इज ax² + bx + c minus y is equal to 0. a, b, c are used as a literal. Equation 2, cx² + dx is equal to y. The literals are c and d. In bx + d is equal to 0. The literals are b and d. In ay² + d is equal to 0. The literals are a and d. Separate the polynomial expression and expression that is not polynomial. Different equations आपके पास given है 6 parts. अब इसमें से आपने separate करना है polynomial कौन सी equation है और not polynomial कौन सी equations है. x² plus x minus 1 is a polynomial equation because इसकी positive exponent है. x² y plus xy का square plus 7 ये भी polynomial equation है. x minus 2 plus y plus 7, अब इसकी पावर नेगेटिव आ गई तो that is not polynomial. अब डिवीजन में भी पावर आ जाए तो क्या हो जाता है? ये भी पॉलिनोमियल नहीं होता. x डिवाइडेड बाय y² + 1 माइनस y² डिवाइडेड बाय x इज अ नॉट अ पॉलिनोमियल.
x cube minus x square plus y minus 1 is a polynomial equation. x4 plus x square plus 5x plus 1 divided by 2 is a polynomial equation. Question number 5 is, what is the constant are used in following expressions? अब constant कौन से यूज़ हुए हैं? डिफरेंट पार्ट, 4 पार्ट्स आपके पास गिवन है, इसमें से आपने कॉन्स्टेंट्स को लिखने हैं. फर्स्ट इक्वेशन इज 7x minus 6y plus 3z is equal to 0. Constants are 7, 6 and 3. Second equation is 5x square minus 3. Constant are 5, 2 and 3. Part 3 is equal to 8x square plus 2y plus 5. Constant are 8, 2, 2 and 5. 9y plus 3x minus 2z. Constants are 9, 3 and 2. Question number 6. Write the degree of the polynomial in a given below. अब आपने डिग्रीज लिखनी है. डिफरेंट 4 पार्ट्स गिवन है. फर्स्ट पार्ट इज x plus 1, इट्स डिग्री इज 1. अब जिसकी डिग्री, जिसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं होती, कोई एक्सपोनेंट नहीं होता, उसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है वेरिएबल की. अब x स्क्वायर प्लस x, हाईएस्ट डिग्री को देखना है. अब x की पावर कितनी है? 2 और एक x की पावर कितनी है? 1. तो अपनी हाईएस्ट डिग्री को काउंट करना है. इट्स डिग्री इज 2. नेक्स्ट इज x cube minus xy plus 1, its degree is 3. x square plus y square plus x cube plus y square minus 1, its degree is 2 plus 2 is equal to 4. Highest degree is 4. Question number 7 is, separate the polynomial has a linear, quadratic and biquadratic and cubic. Linear mean 1 degree equation, quadratic mean 2 degree equation, cubic mean 3 degree equation and biquadratic mean 4 degree equations. Different 8 parts are given. Part 1 is equal to 3x plus 1 is equal to linear equation. इसकी डिग्री कितनी है? 1. That is known as linear equation. x square minus 2, it is a second degree equation, that is known as quadratic equation. y square minus y, is it also a quadratic equation? x plus y, it is a linear equation because its degree is 1. x cube plus x square minus 2, it is a cubic equation because its degree is 3. x4 plus x cube plus x square is a biquadratic polynomial because its degree is 4. x square plus x square y square plus xy is also a biquadratic equation. Its degree is 4. 2 plus 2 is equal to 4. Part 7 is equal to x square plus xy plus 8 is equal to, its highest degree is equal to 2. It is known as quadratic equation. Solution of exercise 5.2. First question is, add 1 plus 2x plus 3x square. Second equation, 3x minus 4 minus 2x square, comma x square minus 5x plus 4. राइटिंग ऑल द एक्सप्रेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अब आपने क्या लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में से लिखना है, लार्ज वैल्यू टू स्मॉल वैल्यू. अब आपने फर्स्ट इक्वेशन लिख दी 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. अब x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर आना चाहिए, x के नीचे x आना चाहिए और कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए. आपने तीनों इक्वेशंस ऐसे ही राइट कर ली. फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. सेकेंड इक्वेशन माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4. एंड देन थर्ड इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4. अब आपने ऐड करना है, तो ऐड क्या होगा? प्लस माइनस माइनस एन, 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ गया, 1 के साथ 1 प्लस किया तो 2x का स्क्वायर. कोफिशिएंट्स प्लस या माइनस होंगे, वेरिएबल्स वैसे के वैसे ही रहेंगे. अब फर्स्ट 2 टर्म्स 2x प्लस 3x, 5x माइनस 5x इज इक्वल टू 0. अब 0 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 4 0 एंड प्लस 1 उसी तरह नीचे आ गया. पार्ट 2 इज इक्वल टू, इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर्स में इक्वेशंस को लिख दिया. फर्स्ट इक्वेशन इज a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 6a
प्लस 7 ए क्यूब प्लस 2a प्लस 5 2a क्यूब माइनस ए स्केयर प्लस 2a माइनस 8। जिसके नीचे वैल्यू कोई नहीं होगी आपने नहीं लिखनी। ए स्केयर के नीचे ए स्केयर, ए क्यूब के नीचे ए क्यूब, ए के नीचे ए और कांस्टेंट टर्म्स के नीचे कांस्टेंट टर्म। प्लस 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 फर्स्ट टर्म को प्लस किया 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 4 प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस किया तो 1 प्लस 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 2 2 प्लस 4 4 में से 6 माइनस किए तो 2। अब बड़ी टर्म के साथ जो साइन है वो आएगा। बड़ी टर्म के साथ साइन माइनस का है, 6 के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो माइनस आ जाएगा। प्लस 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 7 प्लस 5 12 12 में से 8 माइनस किए तो कितना आ गया 4। पार्ट 3 ए क्यूब माइनस 2a स्केयर प्लस बी क्यूब। सेकेंड 4a क्यूब प्लस 6a स्केयर बी प्लस 2ab का स्केयर। थर्ड इक्वेशन माइनस a b का क्यूब a क्यूब b माइनस 5a क्यूब प्लस b का क्यूब। फर्स्ट टर्म ऐसे ही आ जाएगी क्योंकि इसके ऊपर कोई वैल्यूज़ नहीं है तो माइनस 4a क्यूब b उसी तरह आ गया। अब नेक्स्ट वैल्यू आपने क्या आएगी a प्लस 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 5a क्यूब माइनस 5a क्यूब इज इक्वल टू 0 0 लिखें या नहीं लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 6 माइनस 2 6 में से 2 माइनस किए 4 बड़ी टर्म के साथ प्लस का साइन है तो आपके पास प्लस का साइन आएगा 2a b स्केयर प्लस 3b का स्केयर। वैसे ही नीचे टर्म्स आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट p फ्रॉम q। q में से p को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। q की वैल्यू आपने ऊपर लिखनी होगी। फ्रॉम मीन्स वो वाली वैल्यू पहले आ जाती है और जो फ्रॉम से पहले वैल्यू होती है वो बाद में चली जाती है और सब्ट्रैक्ट में नीचे वाले तमाम साइंस चेंज कर दिए जाते हैं। अब q की वैल्यू पहले लिखी, q की इज इक्वल टू 4x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्केयर माइनस x प्लस 1। अब p की वैल्यू लिखी 3x4 प्लस 5x क्यूब प्लस 2x स्केयर माइनस x। अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली टर्म के p के सारे साइन जो प्लस में होगा उसको माइनस में कर दिया जाएगा, जो माइनस में गिवन होगा उसको प्लस में कर दिया जाएगा। 3 के साथ साइन कौन सा है प्लस का तो उसको माइनस में चेंज कर दिया। 5 के साथ प्लस है तो उसको माइनस में चेंज कर दिया। इसी तरह 2 के साथ प्लस है तो माइनस में, x के साथ प्लस है माइनस है तो प्लस में चेंज कर दिया। तो आपने प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 माइनस किया, आपके पास क्या आ गया जी 1। इसी तरह पूरा टर्म्स आपने किया तो आपके पास क्या आ गया x4 माइनस 4x क्यूब प्लस 1 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज़ आल्सो सेम। q को p में से माइनस करना है। q की वैल्यू इज इक्वल टू 3x प्लस 2y माइनस 4z प्लस 1 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 1। अब नीचे वाले साइन चेंज कर दिए, माइनस माइनस प्लस माइनस हो गए तो अब अपने माइनस किया तो आपके पास आंसर आ गया x माइनस y। पार्ट 3 इज आल्सो सेम। q में से p को माइनस कर दिया। q की वैल्यू आपके पास क्या है a क्यूब माइनस 3a स्केयर b प्लस 3ab का स्केयर माइनस b का क्यूब। p की वैल्यू इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 2a स्केयर b प्लस 3ab का स्केयर प्लस b का क्यूब। अब सारे साइन p के चेंज कर दिए, जो प्लस का है वो माइनस हो गया, जो माइनस का है प्लस का हो गया। यहाँ सारे प्लस के साइन गिवन है तो सब कौन से हो गए माइनस में। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 5a स्केयर b माइनस 2b का क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 2y प्लस 3z वेयर x y z की वैल्यू आपके पास गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी। x की वैल्यू क्या है 2a स्केयर माइनस a क्यूब प्लस 3a प्लस 4। सोल्यूशन में सॉल्व कर रहा हूँ। माइनस 2a क्यूब माइनस 2y की जगह आपने क्या y की वैल्यू पुट कर देनी है। y की वैल्यू क्या है 2a क्यूब माइनस 3a स्केयर प्लस 2 माइनस 2a ब्रैकेट क्लोज प्लस 3z की वैल्यू आपके पास गिवन है a4 प्लस 3a क्यूब माइनस 6 माइनस 5a का स्केयर। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 2 ज़र फर्स्ट ब्रैकेट सेम ऐसे ही वैल्यू नीचे आ जाएगी तो सेकंड में आप क्या आ जाएगा 2 2 ज़र 4a क्यूब प्लस माइनस 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 प्लस 2 3 ज़र 6 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़र 4 माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़र 6। अब नेक्स्ट वैल्यू प्लस का साइन है 3 1 ज़र 3 1 4 प्लस 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 3 3 ज़र 9 a का क्यूब
plus minus minus 6 3s are 18 plus minus minus 5 3s are 15. अब पुटिंग द लाइक टर्म्स टुगेदर, अब लाइक टर्म्स मीन्स के A4 के साथ A4, A3 के साथ A3, A2 के साथ A2, A के साथ A और कांस्टेंट टर्म्स के साथ कांस्टेंट टर्म का दी. अब A4 कोई और नहीं गिवन तो आपके पास एक ही A4 गिवन है तो आपने वही लिख दिया 3A4 माइनस A क्यूब माइनस 4A क्यूब प्लस 9A क्यूब प्लस 2A स्केयर प्लस 6A स्केयर माइनस 15A स्केयर. देन A की वैल्यू 3A प्लस 4A प्लस कांस्टेंट वैल्यूज़ लास्ट में 4 प्लस माइनस 4 माइनस 18. अब सॉल्व कर लेना है. अब A क्यूब के साथ A क्यूब प्लस या माइनस होंगे, जो साइन इसके बैक पे गिवन है उसी तरह कर देना. माइनस माइनस प्लस, 4 में 1 प्लस किया तो 5, 5 में से 9 माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया 4A क्यूब 3A4 प्लस 4A क्यूब. अब A स्केयर को सॉल्व करते हैं. 6 में 2 प्लस किए तो 8, 8 में से 15 माइनस किए तो आपके पास कितना आ गया 7A का स्केयर. अब A को सॉल्व करते हैं. प्लस 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 3 में 4 प्लस किए तो 7A. अब कांस्टेंट टर्म्स को सॉल्व करते हैं. प्लस माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 0 और माइनस 18 उसी तरह नीचे आ गया. क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया. क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ टू पॉलिनोमियल इज दिस. आप दो पॉलिनोमियल्स, कोई भी दो पॉलिनोमियल्स हैं उसका सम उनको प्लस करेंगे तो उसका आंसर ये आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई स्क्वायर. इफ़ वन पॉलिनोमियल इज दिस. अब आपने एक पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3. देन फाइंड द अदर पॉलिनोमियल. अब दूसरा पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए जो आपके पास सम का वैल्यू गिवन है उसको इस टर्म फर्स्ट टर्म में से माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सेकंड टर्म आ जाएगी, फर्स्ट टर्म आ जाएगी. अब आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है. सम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स ये गिवन है और वन पॉलिनोमियल भी आपके पास इक्वेशन गिवन है सेकंड पॉलिनोमियल. अब अपने सम ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू फर्स्ट लिखनी है और माइनस कर देना है अपने वन पॉलिनोमियल की वैल्यू. तो वन पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस 3. अब माइनस का साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सारे साइन को चेंज कर देगा. प्लस माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस. अब लाइक टाइम के साथ ऐड और लेस हो जाएंगे. एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ एक्स और एक्स वाई के साथ एक्स वाई और वाई स्क्वायर के साथ वाई और 3 के साथ 3. ऐड और लेस किया तो आपके पास वैल्यूज़ आ गई. आंसर आपके पास क्या है 2x प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3. क्वेश्चन नंबर 5 इज subtract 4x plus 6 minus 2x square from the sum of this टू टर्म्स. अब आपने क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर देना है. पहले इन दोनों का सम निकालना है फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है इसके साथ. अब आपने सम निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देना है फ्रॉम दिस. फ्रॉम दिस का मतलब है ये टर्म बाद में आएगी तो पहले वाली सम वाली टर्म्स लिखेंगे. अब आपके पास पहले एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सम मीन्स प्लस 2x क्यूब प्लस 3x माइनस 7. फ्रॉम वाली टर्म लास्ट में चली जाएगी माइनस ब्रैकेट माइनस के ब्रैकेट 4x प्लस 6 माइनस 2x का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. अब सम कर दिया लाइक टर्म्स के साथ प्लस सम कर दिया तो आपके पास सम की वैल्यू आ गई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x क्यूब प्लस 3x माइनस 7. अंदर माइनस का साइन से फ्रॉम वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास टर्म्स के सारे साइन चेंज हो जाएंगे. प्लस माइनस माइनस 4x प्लस माइनस माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2x का स्क्वायर. अब लाइक टाइम्स को ऐड और लेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब माइनस 3x minus 13. Thank you so much. In the case of any problem, kindly tell me on WhatsApp group.